Now we were doing the vibration stress yesterday, and because of resonance, stress becomes more, and things can break. As I was saying, the critical RPM is a RPM at which your frequency of the vibration of your propeller will match the natural frequency of the ship. That way, the vibration will increase with resonance. Now, to compensate that, on this stern frame, you have this vibration post. So this is your stern frame. This is your rudder, and your propeller is connected here. And this is your rudder stock going through rudder trunk to your steering gear here. We'll be doing stern frame afterwards. And this rudder is unbalanced, which we'll be doing later. What is unbalanced rudder and all we'll be doing later. So this is your stern frame, and this post, your vibration will spread out to your hull. So in ship construction, the main thing is wherever your stresses are, we try to spread it to the hull. Hull is like a Maidan, bada Maidan, where your stresses can spread out. Example, you are walking on the sand, which is wet on the beach. So your feet is going to get embedded in the sand. But if you lie down there, you're not getting embedded because you're spreading your pressure around. If your pressure is at one point, then it is going to embed. So where your stresses are spread out, they are not going to affect the ship. So that's why the vibration post is to spread out your stresses throughout the hull. So hull vibration, as I was saying, can be excited by low engine speed, which is critical RPM. If it is located on or near the node of the critical hull vibration, that is your vibration of the hull. And if the frequency of this vibration coincides with the first or second harmonic of engine excitation, then you are going to have resonance, and that can be disastrous to your ship's engine because it starts breaking off. That's why we never have that critical RPM. Either the chief engineer will try to reduce it below that or increase it above that. It will never be in that telegraph which is marked red. That region, that is critical RPM. Now the structures which compensate your vibration stress on ship are your vibration post, which I have shown you on the stern frame. Then your mountings on the ship will be proper. That is your mountings for your life buoys, mounting for your other things. They'll be proper so that things don't fall off. Sometimes the vibration is also there when your propeller is misaligned. Now propeller is like a fan. So if your fan is misaligned, then you're going to have a lot of noise. Viral hua tha. I was seeing in this news. One of the video was viral where the fan head was rotating like anything. And the guy was a corona victim in, I think, Bhopal or something. He was saying, कि भाई कोरोना से डर नहीं लगता, ये फैन से डर लगता. So if your propeller is misaligned, then your vibration will be excessive. So that has to be corrected in the dry dock. So your exciting forces of frequency close to the natural frequency of the hull should be avoided. Now you have another resonance example is your steam pipes. You know, when your pressure of the steam pipe is more, the steam pipes are there on chemical tankers and tankers or heating coils. Those are heating coils. So if the pressure is more, they start vibrating. When the vibration is too much, they are going to break the pipes. So then you have to reduce your steam. Similarly, in tankers, when you're pumping cargo, if it is exceeding the pressure, the vibration of the pipelines will start. So if you don't reduce it, then the pipelines are going to break. So you try to reduce the pump RPM so that your vibrations are reduced. Have you understood vibration stresses? Any questions on vibration stress? Vibration. अब जब फॉरवर्ड रीजन ये वाला रीजन है, जब भी एक क्रेस्ट वेव आती है फॉरवर्ड में, जब हम मूव कर रहे हैं, तो वो प्रेशर इंक्रीज हो जाता है और ये the plating will go inside because the pressure increases. And when your trough wave comes, the pressure decreases outside, though the plate will come out. So the changing pressure outside is going to create the panting stresses which are
trying to push your forepeak tank plating inside and coming outside when the pressure is less. Now that is panting stress. जैसे कई बार आप बहुत तेज भागते हो तो आपकी सांस फूल जाती है, आपके नोस्ट्रिल्स फूल जाते हैं, सांस बड़ी बड़ी हो जाती है। तो जब आप सांस लेते हो तो नोस्ट्रिल चिपक जाती है, सांस छोड़ते हो नोस्ट्रिल बाहर आती है। दैट इज सिमिलर टू पैंटिंग ऑफ द फोरपीक एरिया। दूसरी तरह से समझाता हूँ कि पैंटिंग, एक तो आपको क्रेस्ट एंड ट्रफ से समझाया और एक बर्नौलीज प्रिंसिपल से समझाता हूँ कैसे आपके पैंटिंग होती है। So two ways I've explained this. One is your crest and trough. Second is Bernoulli's principle. अभी Bernoulli's principle से समझाता हूँ। The thing is, तो आपका जब शिप मूव कर रहा है तो पानी यहाँ आ रहा है, ठीक है। जब पानी आ रहा है और क्रेस्ट वेव आई, क्रेस्ट ऐसे आई और ट्रफ ऐसे आई, तो क्या हुआ, पानी यहाँ लगा और क्रेस्ट आया, तो वहाँ जो है वेलोसिटी रुक गई, कम हो गई, क्योंकि क्रेस्ट आई तो वेलोसिटी कम हो गई, तो प्रेशर बढ़ गया, बिकॉज P into V is constant। तो प्रेशर जब बढ़ गया तो प्लेटिंग अंदर जाएगी, प्रेशर बाहर बढ़ गया देन इनसाइड द फोरपीक, तो प्लेटिंग इज गोइंग टू गो इनसाइड। अब ट्रफ वेव आया, ट्रफ वेव ऐसे आया, तो ट्रफ वेव में बाहर की स्पीड बढ़ गई पानी की, सो द वाटर स्पीड इज इंक्रीज। नाउ पानी की स्पीड बढ़ गई तो क्या हो गया, V ज्यादा हो गया तो प्रेशर बाहर कम हो गया, P into V is constant। ये बर्नौलीज प्रिंसिपल है, इज कांस्टेंट। तो वेलोसिटी बढ़ गई, प्रेशर कम हो गया, क्या हो गया, अंदर का प्रेशर बाहर से ज्यादा है, तो दिस प्लेटिंग इज गोइंग टू कम आउट। सो दिस प्लेटिंग गोइंग इनसाइड एंड कमिंग आउट, दिस प्रोसेस इज नोन एज पैंटिंग। दिस इज अ स्ट्रेस हियर बिकॉज दिस फोरपीक प्लेटिंग कैन ब्रेक ऑफ। उसको अवॉइड करने के लिए इस रीजन में, हमारे दोनों रीजन में होता है पैंटिंग, फॉरवर्ड फोरपीक एंड आफ्ट पीक में। आफ्ट पीक में कम होता है, फोरपीक में ज्यादा होता है, बिकॉज हमारी वेव्स फोरपीक से आती है, पीछे से नहीं आ रही, आगे से आती है ज्यादातर। तो हमारे ऐसे बीम्स लगे होते हैं अंदर में जो इसको अंदर दबने से रोकते हैं, दैट इज पैंटिंग बीम्स। और जिससे कनेक्टेड एरिया है उसको हम पैंटिंग स्ट्रिंजर कहते हैं, और दिस फॉरवर्ड पोर्शन इज नोन एज ब्रेस्ट हुक। ये सारी चीजें कंपनसेट करती हैं पैंटिंग को। ऑल दीज थ्री थिंग्स आर कंपनसेटिंग योर पैंटिंग। अब मैं आपको फोरपीक का भी डायग्राम दिखाऊंगा, मेक यू अंडरस्टैंड के। एक और मैं डायग्राम यहाँ दिखा रहा हूँ आपको। क्रेस्ट आ गया बर्नौलीज प्रिंसिपल के कारण, क्योंकि यहाँ वेलोसिटी कम होगी, प्रेशर बढ़ गया, ये दबेगा अंदर, तो ये अंदर दबेगा। अब ट्रफ आया, वेलोसिटी बढ़ गई, प्रेशर कम हो गया, ये प्लेटिंग बाहर आ गई। तो इनको रोकने के लिए हमारे पैंटिंग बीम्स हैं, और आगे में ब्रेस्ट हुक है, साइड में पैंटिंग स्ट्रिंजर है। So I'll show you one of the diagrams of forepeak tank। ये तो बाद में भी दिखाएंगे, लेकिन अभी भी दिखा देते हैं so that you understand कि कैसे लगा हुआ। ये आपका फोरपीक टैंक है। So फोरपीक टैंक में ये आपका फॉरवर्ड कोलिजन बल्कहेड है, जिसपे स्टिफनर लगे हैं, दिस इज योर चेन लॉकर, इसके ऊपर भी स्टिफनर लगे हैं। ये आपका फ्रेम्स आएगा, फ्रेमिंग में आपको स्ट्रेसेस के बाद कराऊंगा। ये आपका पैंटिंग स्ट्रिंजर है, और इसमें ये कनेक्टेड है पैंटिंग बीम, और यहाँ ब्रेस्ट हुक है। तो ये जब दबेगा, पैंटिंग बीम, पैंटिंग स्ट्रिंजर, ब्रेस्ट हुक, इसको दबने से रोकेंगे। सो दे आर कंपनसेटिंग द पैंटिंग अरेंजमेंट, पैंटिंग स्ट्रेसेस को कंपनसेट करते हैं। दिस इज योर वॉश बल्कहेड फॉर रिड्यूसिंग एफएससी। ये सब डिटेल में बाद में भी करेंगे हम। So panting is a tendency of the steel hull to flex in and out like an oil can being squeezed when your ship is pitching. So this is making headway. आप एंकर पे हो तो इतनी पैंटिंग वेंटिंग नहीं होगी, बट आपकी हेडवे होगी तभी आपकी पैंटिंग होगी। और जितनी ज़्यादा वेव्स होगी, उतनी ज़्यादा हाई वेव्स होंगी, उतनी ज़्यादा पैंटिंग होगी। So the panting creates significant stress on the ship's hull. It is very dangerous। अगर आपके स्ट्रक्चर्स टूट जाएं तो आपकी शिप की प्लेटिंग ही टूट जाएगी, एंड कैन रिजल्ट इन फ्लडिंग एंड सेपरेशन ऑफ द हल एंड डेक, इट अकन एज वेल एज आउट पीक रीजन। बट फोरपीक टैंक एरिया में पैंटिंग stresses will be more as compared to आउट पीक रीजन। We'll be doing detail of panting
stresses afterwards. अब ये reduction of panting stresses में कैसे होगा इसकी डिटेल हम बाद में करेंगे, क्योंकि अभी आपने स्ट्रक्चर किए नहीं है, तो हम बाद में इसको कराएंगे। ये वाले डायग्राम हम में आते हैं, ये बाद में कराएंगे द पैंटिंग अरेंजमेंट। अभी सिर्फ डेफिनेशन करा रहे हैं, डिटेल में जब कराएंगे तो वील कम टू दिस। नाउ वी कम टू पाउंडिंग। पाउंडिंग लिटरली मतलब कूटना, मसाला कूट रहे हैं, पाउंड हो रहा है। कपड़े धुलते हैं, पाउंड हो रहे हैं। उसी तरह शिप की भी धुलाई होती है भाई। व्हेन यू आर इन योर लाइट बलास्ट कंडीशन, सपोज आगे का ट्रैप 3 मीटर 4 मीटर है, तो 4 मीटर या 3 मीटर है, तो बाव आपका निकल आता है पानी से बाहर बड़े जोर से, उसके बाद काफी वाइब्रेशन होती है। सो दिस स्लैमिंग इज नोन एज पैंटिंग, सॉरी पाउंडिंग। पैंटिंग तो आपको बता दी। दिस स्लैमिंग डाउन इज नोन एज पाउंडिंग. So the heavy pitching assisted by heaving as a whole ship is lifted in a seaway, and when a vessel slams down on water is known as pounding or तो pounding जो होती है वो bottom में होती है, ship side में नहीं होती, bottom में होती है। तो forward region में जो area है forward collision bulkhead के पीछे, that section is strengthened, DB section bottom में strengthening होती है। So this area, the DB is subjected to severe blows from the sea, and the greatest effect of pounding is, तो इस रीजन में आपकी पाउंडिंग होती है, ये वाले रीजन। तो अगर ये हमारा कोलिजन बल्कहेड एरिया है और ये रीजन जो है हमारा फॉरवर्ड परपेंडिकुलर है, कोलिजन बल्कहेड जो होता है LBP का 5% से 7.5% पीछे होता है। तो 5%, 7.5% ऑफ LBP हम डिटेल में फिर से कराऊंगा, आफ्ट ऑफ फॉरवर्ड परपेंडिकुलर। और इससे पीछे 25% ऑफ L और 30 पीछे एक इमेजिनरी लाइन होती है, इन दोनों के बीच में इधर में पाउंडिंग होती है बॉटम में। पैंटिंग आपके ऊपर होती है यहाँ वाटर लाइन पे, ये पैंटिंग एरिया है, और पाउंडिंग एरिया शिप्स बॉटम में होता है बिटवीन द फॉरवर्ड कोलिजन बल्कहेड एंड एन इमेजिनरी लाइन विच इज 25% ऑफ LBP आफ्ट ऑफ फॉरवर्ड। ये इमेजिनरी लाइन है, यहाँ कोई बल्कहेड नहीं है, इमेजिनरी लाइन है। इस एरिया को हम स्ट्रेंथन करते हैं, गर्डर और कई चीजें लगाते हैं। इसकी बॉटम प्लेटिंग भी थिक होती है, मच थिकर, एंड गर्डर भी ज्यादा लगाते हैं। वील कम टू गर्डर जब नेक्स्ट फ्रेमिंग में आएंगे, देन वील डू द स्ट्रक्चर्स ऑफ द शिप एंड द गर्डर एंड ऑल सब करेंगे। तो पाउंडिंग होती है व्हेन हीविंग और पिचिंग, द फॉरवर्ड एंड हीव्स, re-enters the water with the slamming effect. Flat areas of plating, that is the bottom plating, are brought into violent contact with water at a very acute angle. कई बार आप ऊपर से, जब आपने डाइविंग टेस्ट किया था तो स्विमिंग पूल में ऊपर से छलांग मारते हैं ना, आप डाइव कर लिया तो ठीक है, लेकिन छाती के बल पे गिरोगे तो वो स्लैमिंग होता है या पाउंडिंग होता है। उसी तरह जहाज भी ऐसी स्लैम हो जाता है। तो इफ यू फॉल ऑन योर चेस्ट इन वाटर व्हेन यू डाइव फ्रॉम टॉप, पूरा लाल हो जाता है। तो सिमिलरली शिप जब पाउंड होता है वो पूरा बॉटम में उसका इफेक्ट होता है। सो देयर इज अ लाउड बैंग एंड द शिप शडर्स। मोमेंटम ऑफ शिप रिसीव्स अ चेक, energy is imparted to the ship's girder to make it vibrate. So this is known as pounding, and this is result of dynamic forces, which is the sea area. अब इसकी additional stiffening हम बाद में करेंगे, और ये वाली जो इसके डायग्राम्स हैं we'll do afterwards, जब आपको शिप के स्ट्रक्चर समझाएं। अब आता है एक और स्ट्रेस which is known as discontinuity stress. मैनहोल, बेटा आपके शेप क्या होता है मैनहोल का? आपका मैनहोल जो जहाज पे है उसका क्या शेप होता है? स्क्वायर होता है? स्क्वायर विद कर्वी एजेस सर। स्क्वायर होता है? स्क्वायर देखा आपने? नहीं होता स्क्वायर। इलिप्टिकल शेप इसलिए होता है क्योंकि वो डिसकंटिन्यूटी स्ट्रेस को अवॉइड करता है। अब ये डिसकंटिन्यूटी स्ट्रेस आपको बताते हैं क्या चीज है। कटिंग की है जहाज पे, हैचेस की, सब में कंटेनर शिप है, जनरल कार्गो हैचेस ऐसे कटे हैं या बल्क कैरियर में। तो या तो अगर हमें डिसकंटिन्यूटी स्ट्रेस, अगर हमने इसको रेक्टेंगल में नहीं काटा होता और सिर्फ एलिप्टिकल किया होता, राउंड किया हो जाता, तो कार को फंस जाता। तो हमें इसको एलिप्टिकल नहीं काटना होता क्योंकि हमें कार्गो को डिस्चार्ज करना है। लेकिन अगर हमने इसको स्क्वायर काटा या रेक्टेंगल काटा तो इस कॉर्नर पे स्ट्रेस हो जाएगा, ये लाल लाल कॉर्नर, ये डिसकंटिन्यूटी स्ट्रेस होता है।
अगर एक सीधी चीज जा रही है उसको सडनली आप ब्रेक करोगे तो डिसकंटिन्यूटी हो जाती है ना। जैसे आप उस पर करते हो बॉन्डिंग वायर आपकी टूट गई तो डिसकंटिन्यूटी हो जाएगी। अगर आपकी वायर में, तार में कॉपर की वायर बीच में से टूट गई तो इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं हो, डिसकंटिन्यूटी हो जाती है। सिमिलरली अगर आपके एक लेवल चल रहा है और सडनली आपने उसको एंगल चेंज कर दिया 90 डिग्री, सीधा जा रहा है 90 डिग्री चेंज कर दिया, तो यहाँ डिसकंटिन्यूटी हो जाएगी, वहां क्रैक आ जाएंगे। तो आपको समझाता हूँ डिसकंटिन्यूटी कैसे होता है, उसके बाद डायग्राम्स पे आएंगे। सपोज एक वायर ऐसे जा रही है, ठीक है, अब हमने इसको ब्रेक कर दिया बीच में, तो डिसकंटिन्यूटी होगी, इसमें तो इलेक्ट्रिसिटी पास ही नहीं होगी, ठीक है, इसमें तो इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं होगी। अब क्या है, अगर हमने सपोज एक इतना बड़ा प्लेट है, उसमें हमने ऐसे कटिंग कर दी और जहाज पे लगा दी, तो यहाँ डिसकंटिन्यूटी हो जाएगा, ये पॉइंट पे डिसकंटिन्यूटी हो जाएगा, इस पॉइंट पे डिसकंटिन्यूटी हो जाएगा, इस पॉइंट पे डिसकंटिन्यूटी हो जाएगा, यहाँ क्रैक आ जाएंगे, इस एरिया में क्रैक आ जाएंगे, मतलब ये वाले पॉइंट्स पे क्रैक आ जाएंगे, इन पॉइंट्स पे क्रैक आ जाएंगे, क्योंकि यहाँ डिसकंटिन्यूअस है। तो हम क्या करेंगे, हम उसमें क्या करेंगे, अब हम करेंगे कि भाई सपोज हमें कटिंग करनी है मैनहोल की, तो हम उसको तो या हम राउंड भी कर सकते हैं, लेकिन राउंड में हमारे स्ट्रेसेस इतने कम नहीं होंगे जितने एलिप्टिकल में कम हो जाएंगे। एलिप्टिकल में हमारे स्ट्रेसेस कम होते हैं, राउंड में भी कम हो जाएंगे, लेकिन फिर मैनहोल के अंदर हम फंस सकते हैं। अगर राउंड हो तो हम उसने एलिप्टिकल किया कि हम टेढ़े होके एससीबी पहन के जा सकते हैं, राउंडेड होगा तो एससीबी पहन के जाके फंस जाएगा। तो हमने उसको एलिप्टिकल कर दिया कि अगर हम कोई मोटा बंदा जा रहा है, यू कैन टर्न अराउंड एंड गो इनसाइड, इसमें जा रहा तो फंस जाएगा, इसलिए वो एलिप्टिकल है, क्योंकि कोई स्ट्रेसेस फिर यहाँ कहीं भी नहीं आ रहा है, क्योंकि वो कंटिन्यूस ऐसे घूम रहा है, कोई डिसकंटिन्यूटी नहीं है, लेकिन इसमें डिसकंटिन्यूटी आ रहा है। तो यहां तक समझ आ गया, यहां तक समझ आ गया डिसकंटिन्यूटी क्या है? यस सर। यहां समझ आ गया? यस सर। तो पहले बेसिक कॉन्सेप्ट समझना चाहिए, डिसकंटिन्यूटी क्या है, उसके बाद समझाएंगे डिसकंटिन्यूटी स्ट्रेस क्या। अब हमारे जो हैच कॉर्नर्स हैं, यहाँ आपका बीम जा रहा है और यहाँ गर्डर जा रहा है, तो इन दोनों को बीच में हम मिलाते हैं, एक गसेट प्लेट नीचे लगा देते हैं। गसेट प्लेट बेसिकली आपको दिखाते हैं एक और डायग्राम से, वो डायग्राम उतने अच्छे नहीं थे पहले। सपोज हमारी एक प्लेट ऐसे जा रही है और एक प्लेट ऐसे जा रही है, ठीक है, अब हम इनको जोड़ सकते हैं। कैसे जोड़ेंगे, क्योंकि यहाँ कॉर्नर में स्ट्रेस आ सकता है ना, क्योंकि हमने जोड़ लगाया है हैच कॉर्नर में, तो ये एरिया क्रैक कर सकता है, तो हम इसको अवॉइड करने के लिए ये प्लेट लगा दी हमने, और इस प्लेटिंग में हमने या तो इसमें वेल्ड कर दिया या रिवेटिंग कर दी। यहाँ दो रिवेट मार दिए, यहाँ हमने रिवेट मार दिए, यहाँ रिवेट मार दिए। तो ये जो प्लेटिंग बनी, मतलब ये पूरी प्लेटिंग, आपको इसको कलर डालते हैं, देखते हैं कोई कलर लगता है। ये पूरा ही हो गया, कहीं गैप आ गया क्या? हाँ वहां गैप। तो ये जो प्लेट लगी इसके ऊपर, ये इस एरिया में, ये पूरा नहीं, ये जो रेड वाली प्लेट लगी इसको हम कहते हैं गसेट प्लेट। अगर मैंने सारे कलर्स लगा दिए यहाँ, ये आपके
तो ये वाली आपकी जो प्लेट, इसको भी लाल कर देते हैं, उसको पूरा करें, भी लाल भी। तो ये जो लाल प्लेट लगी है इसको हम कहते हैं गसेट प्लेट। तो ये डिसकंटिन्यूटी स्ट्रेस को रोकती है, बिकॉज आपका स्ट्रक्चर क्या है, ये स्ट्रेसेस यहाँ जो कॉर्नर पे आ रहे थे इस पे फैल जाएंगे। तो दिस इज नोन एज गसेट प्लेट दैट अवॉइड योर डिसकंटिन्यूटी स्ट्रेस। ठीक है, तो ये वाले आपके हैच बीम है इसमें, और ये आपका गडर हो गया। तो ऐसे कॉर्नर्स पे आपकी गसेट प्लेट लगती है। कई बार डेफिनेशन आता है व्हाट इज गसेट प्लेट। तो ये गसेट प्लेट बेसिकली डिसकंटिन्यूटी स्ट्रेस को कंपनसेट करती है। ये डायग्राम बना लो आप अपने लिए, बनाना तो बना लो, या तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो। बना लिया सबने? यस सर। ओके, अब सारे आपके सारे टाइप के डिसकंटिन्यूटी स्ट्रेस अब करेंगे। तो ये गसेट प्लेट ऐसी ही होती है जैसे अभी पतंग है, पतंग के पीछे तीले लगे हैं ना, उसके पीछे हम कागज लगाते हैं सपोर्ट करने के लिए, लाल कलर का कागज लगा दिया तो वो पतंग को सपोर्ट करती है। फिर आपको रेलवे के ब्रिज में भी ऐसे गसेट प्लेट मिलेंगे, आपको दिखाएंगे बाद में डायग्राम्स कि वो गसेट प्लेट क्या होती है, रेलवे ब्रिज पे कैसे होते हैं वो मैं बाद में दिखाऊंगा। अब दूसरा एग्जांपल का डिसकंटिन्यूटी स्ट्रेस का एग्जांपल आपको दिखा रहे हैं। ये दूसरे रीजन में सपोज ये आपकी ब्रेक ऑफ अकोमोडेशन है, यहाँ भी डिसकंटिन्यूटी होता है क्योंकि पीछे आपका इंजन रूम एरिया और अकोमोडेशन है, ये मेन कार्गो एरिया है। तो ब्रेक ऑफ अकोमोडेशन में कई शिप्स ऐसे डूब गए हैं जो इधर से टूटे इधर से टूटे टूटे,
अलग अलग टूट के गिरे। तो ब्रेक ऑफ अकोमोडेशन में ज्यादातर टूटते हैं बिकॉज वहां डिसकंटिन्यूटी स्ट्रेस है। तो वेल्डिंग वहां अच्छी करनी चाहिए, अदरवाइज टूट के गिरेंगे। एक और रीजन जहां आपका डिसकंटिन्यूटी होता है, जो शिप की रेलिंग ये जा रही है और यहाँ एक बुलवर्क होता है, जहां आपका रोप्स पास करती हैं, फेयर लीड है आपके। तो ये फेयर लीड से हम रोप पास करते हैं, तो ये जो रीजन है शियर स्ट्रेस से उठा हुआ जो प्लेट है, इसको बुलवर्क कहते हैं। यहाँ नॉर्मली कई बार सीढ़ियाँ उतरते हैं तो यहाँ साइड में कवर होता है लगा हुआ इस तरफ, और यहाँ फेयर लीड लगी है, तो दिस इज बुलवर्क। और बुलवर्क के साथ जहाँ कनेक्ट करता है रेलिंग, वहाँ डिसकंटिन्यूटी होती है कि बुलवर्क एक्सटेंड नहीं हो रहा पूरे जहाज पे, यहाँ रेलिंग हो रही है। तो इस रीजन में भी डिसकंटिन्यूटी स्ट्रेस होता है, जहाँ बुलवर्क और रेलिंग ज्वाइन करती है। ये तो हो गई तीसरी जगह। फिर आपका नीला वाला जो है वो लॉन्जिट्यूडनल बल्कहेड है, 4.5 जाता है। जैसे ये शिप है, तो ये वाले बल्कहेड्स को हम लॉन्जिट्यूडनल बल्कहेड कहते हैं और ये वाले बल्कहेड को ट्रांसवर्स बल्कहेड कहते हैं। ऑरेंज वाला ट्रांसवर्स बल्कहेड है, नीला वाला लॉन्जिट्यूडनल बल्कहेड है। जहां ज्वाइन करते हैं इस पॉइंट्स पे, ये वाले पॉइंट्स हैं, इनकी वेल्डिंग अच्छी करनी चाहिए क्योंकि यहाँ डिसकंटिन्यूटी स्ट्रेस है, ये जुड़ा जा रहा है यहाँ से। तो यहाँ जोड़ लग गया तो यहाँ मतलब डिसकंटिन्यूटी स्ट्रेस होगा, तो वेल्ड अच्छा करना पड़ता है। तो ये तो चौथा एग्जाम्पल हो गया। पांचवा एग्जाम्पल, ये आपका ट्रांसवर्स बल्कहेड है और ये वाले लॉन्जिट्यूडनल पास करते हैं। लॉन्जिट्यूडनल कंटिन्यूस होते हैं, लॉन्जिट्यूडनल में ब्रेक कोई नहीं लगता, क्योंकि लॉन्जिट्यूडनल में ब्रेक हो जाएगा तो जहाज क्रैक कर सकता है जहां ब्रेक हुआ। लॉन्जिट्यूडनल स्ट्रेंथ देता है वो, हम जब हम करेंगे लॉन्जिट्यूडनल गर्डर सब करेंगे तो और क्लैरिफाई करेंगे। तो लॉन्जिट्यूडनल जब बल्कहेड से पास करता है तो वहां कट लगाना पड़ता है या वी नॉच लगाना पड़ता है, और इस एरिया में क्योंकि कट किया गया है यहाँ क्रैक हो सकते हैं, इसलिए यहाँ वी नॉच कॉर्नर लगाते हैं। ये वी नॉच कॉर्नर लगाते हैं डिसकंटिन्यूटी स्ट्रेस को अवॉइड करने के लिए। तो ये 5 एग्जांपल हैं डिसकंटिन्यूटी स्ट्रेस के। अब इसकी थ्योरी करते हैं। तो where the sudden discontinuity of structure stresses will build up in that region. पहला एग्जांपल दिखाया था आपको डायग्राम के साथ, इन वे ऑफ हैच ओपनिंग इन ड्राई कार्गो शिप्स, टैंकर में नहीं, जनरल कार्गो कंटेनर शिप्स में large openings have to be cut on deck to allow cargo to be loaded and discharged quickly and easy. Now because your deck is continuous forward and aft, to and fro means forward and aft, this opening becomes sudden discontinuity and therefore you have to with plate to compensate for your local stresses. ये अलग रीजन्स पे डिसकंटिन्यूटी स्ट्रेस है, उसको हम कैसे रोकते हैं, ये सब उसके डायग्राम। बट आप उस पर नहीं करो, जितने मैंने आपको दिखाए वही बहुत है। रेलवे ब्रिज आपने देखा होगा, रेलवे ब्रिज में ऐसे स्ट्रक्चर लगे होते हैं, देखे हैं जो रेलवे ब्रिज Yes, पास करते हैं तो ऐसे स्ट्रक्चर लगे होते हैं, इसी को गसट प्लेट कहते हैं। आपको और डायग्राम दिखाते हैं, इसमें और डायग्राम है कि नहीं, वही डायग्राम है। वो रिवेट लगा होता है ऐसे, यहाँ रिवेट होते हैं, सारे रिवेट लगते हैं। इनफैक्ट मेट्रो ब्रिज के नीचे से भी देखोगे तो आपको गसट प्लेट दिखेंगे जहाँ रिवेटिंग लगी हुई है, जहाँ ये स्ट्रक्चर्स ज्वाइन करते हैं, 3-4 स्ट्रक्चर ज्वाइन करते हैं तो उनको जोड़ा जाता है इन गसट प्लेट, सो दैट यहाँ स्ट्रेसेस बिल्डअप ना हो। ये पूरा लोड ले लेती है इन सारे मेंबर्स का। फिर ब्रेक ऑफ अकोमोडेशन दिखाया था आपको, so the forward end of the accommodation superstructure comes to abrupt end, has to be strengthened by additional welding. तो break of accommodation में additional welding करनी पड़ेगी। नंबर 3, जब बुलवर्क ज्वाइन करता है रेल को, मतलब शिप की रेलिंग्स को ज्वाइन करता है, तो बुलवर्क सडनली एंड हो जाता है, तो वहाँ डिसकंटिन्यूटी स्ट्रेस होती है और वहाँ आपको एक्स्ट्रा वेल्डिंग लगानी पड़ती है। चौथा आपको बताया था, जहाँ आपके लॉन्जिट्यूडनल मीट करते हैं ट्रांसवर्स बल्कहेड को, या जहां आपके लॉन्जिट्यूड मीट कर रहे हैं ट्रांसवर्स बल्कहेड को, वहां भी स्ट्रेस है। ये लॉन्जिट्यूडनल पास कर रहे हैं बल्कहेड के थ्रू,
वहाँ डिसकंटिन्यूटी स्ट्रेस है। ये आपकी स्ट्रिंजर प्लेट्स हैं, ये वाली जो प्लेट है, ये आप बाद में आपको कराएंगे। ये स्ट्रिंजर प्लेट्स हैं, ये आपकी बीम्स हैं, ये सब आपको बाद में कराएंगे। ये साइड में फ्रेम्स लगे होते हैं। ये लॉन्जिट्यूड, सॉरी ये बीम नहीं है, लॉन्जिट्यूड बीम्स ऐसे जाएंगे। और ये लॉन्जिट्यूडनल 4.5, और ये स्टिफनर्स लगे हैं बल्कहेड में। ये स्ट्रिंजर प्लेट है, इसकी डिटेल हम बाद में कराएंगे। तो जहाँ आपके लॉन्जिट्यूडनल बल्कहेड मीट कर रहे हैं ट्रांसवर्स बल्कहेड को, वहाँ भी आपकी कंटिन्यूटी स्ट्रेस है, जहाँ एडिशनल वेल्डिंग करानी पड़ेगी। तो ये आपके ऑपरूम बल्कहेड है, ये लॉन्जिट्यूडनल बल्कहेड को मीट कर रहा है, तो यहाँ भी स्ट्रेस होगा इन पॉइंट्स। जहाँ जॉइंट है वहाँ आपकी डिसकंटिन्यूटी स्ट्रेस होगा। अब हमारी दो फोर्सेस, दो आपके स्ट्रेस बचे हैं, शियर फोर्स एंड बेंडिंग मोमेंट। तो पहले आपको शियर फोर्स समझाएं। अगर दो फोर्सेस ऐसे लग के इसको काट रही हैं तो उनको शियर फोर्स करते हैं, अगर हम ऐसे काट रही हैं तब भी शियर फोर्स कहते हैं। तो आपको जरा शियर फोर्स एंड बेंडिंग मोमेंट समझाते हैं दूसरे डायग्राम से। नाउ सपोज ये आपका एक कील लगी है दीवार में और आप ऊपर से थोड़ा मार रही हो, हिटिंग अ हैमर फ्रॉम टॉप। यहाँ से दिस इज योर वॉल एंड यू गॉट अ नेल एंड यू हिटिंग फ्रॉम टॉप। तो राइट साइड आपका नीचे जा रहा है, लेफ्ट साइड आपका इधर दीवार पे लगा है, सो दैट इज द शियर फोर्स। राइट साइड अगर नीचे जा रहा है और लेफ्ट साइड दीवार पे लगा हुआ है, दैट इज शियर फोर्स विच इज पॉजिटिव। अगर वही नेल यू आर हिटिंग फ्रॉम बिलो with a hammer, this end will be stuck to the wall and this end will be cut off, so this is a negative shear। तो ये पॉजिटिव शेयर है, या राइट साइड आपका नीचे जा रहा है और लेफ्ट साइड अगर ऊपर जा रहा है, राइट साइड ऊपर जा रहा है, लेफ्ट साइड नीचे है रहेगा, दैट इज नेगेटिव। तो सपोज हमारे शिप पे लोडिंग अलग की है, इस होल्ड में कम किया, इस होल्ड में ज़्यादा किया, इस होल्ड में कम किया, इस होल्ड में ज़्यादा, इस होल्ड में कम किया। So here the force of buoyancy will be more than gravity, ऊपर फोर्स जाएगी, यहाँ gravity is more than buoyancy ऐसे जाएगी नीचे। So this will be a positive shear, this will be negative shear। एक्ट किसके ऊपर कर रही है, ये आपके बल्कहेड पे कर रही है। So positive shear, negative shear। Similarly ये वाला negative shear, ये positive shear, ये negative shear। So the shear forces acting on your bulkhead here, जो बल्कहेड के ऊपर एक्ट कर रही है, जो नीचे जा रहा है वो पॉजिटिव है, जो ऊपर जा रहा है वो नेगेटिव है। आपको दो और डायग्राम से समझाते हैं। सर ये पॉजिटिव और नेगेटिव किस बेसिस पे डिपेंड करता है? आप किसी को भी पॉजिटिव ले सकते हो, बट जो बेसिक हम लेते हैं वो राइट साइड नीचे जा रहा है तो उसको हम पॉजिटिव लेते हैं, लेफ्ट साइड और राइट साइड ऊपर जा रहा है तो नेगेटिव लेते हैं। शेयर फोर्स ऐसी भी रहता है, सपोज आपकी किताब है बहुत मोटी, बाइंडिंग नहीं की आपने, सपोज एक 500 पेजेस की एक ढेर लगा दी और आपने ऊपर हाथ रखा, तो आगे का सेक्शन इस तरफ जाएगा और पीछे का सेक्शन इधर जाएगा। कभी देखा आपने हाथ रख के, बड़ी मोटी किताब के ऊपर हाथ रख दिया, थोड़ा प्रेशर डाला तो आगे का सेक्शन इधर जाएगा और पीछे का सेक्शन इधर। इसको भी शेयर फोर्स ही कहते हैं। एक सेक्शन इधर जा रहा है, एक सेक्शन इधर जा रहा है, तो फोर्स ऐसे लग रही है और एक सेक्शन इधर जा रहा है, एक इधर जा रहा है, या ऐसे भी लग सकती है, एक्सिस इधर है और डायरेक्शन उनके चेंज हो गए। तो जो ऊपर जा रहा है, हाँ क्या बोल रहे हैं? बुक वाली में सर ये नेगेटिव कौन सा है, पॉजिटिव? नीचे वाली पॉजिटिव है ना? नहीं, वो बुक वाला हम लेंगे नहीं, क्योंकि बुक वाला हम शिप पे यूज नहीं करते ना। हम तो ये वाला लेंगे क्योंकि शिप पे हम ये यूज करते हैं ना, ये वाला हम बुक वाला नहीं लेंगे। ये तो समझाने के लिए बता रहे हैं कि शेयर फोर्स क्या है, लेकिन हमको जब बेंडिंग मोमेंट लेना होता है, अभी बेंडिंग मोमेंट कराएंगे आप, तो जो ऊपर जा रहा है हम उसको नेगेटिव लेते हैं, नीचे जा रहा है तो पॉजिटिव लेते हैं। अब आपको बेंडिंग मोमेंट कराएंगे इसके बाद, जरा आपको पहले शेयर फोर्स पूरा समझा देंगे, फिर बेंडिंग मोमेंट करवा रहे हैं। आज थ्योरी नहीं करा रहे, आज सिर्फ डायग्राम से समझा रहे हैं। थ्योरी अगली बार कराएंगे, क्योंकि थ्योरी में समझ कुछ आएगा नहीं, इसी से समझ आएगा, थ्योरी से कुछ समझ नहीं आएगा। जो मैंने डायग्राम बनाया उसी से समझ आएगा, किताबों से कुछ समझ आता नहीं वैसे भी। तो आपने कील को हथौड़ा मारा, ये नीचे जा रहा है पॉजिटिव है, नीचे से हथौड़ा मारा, ये वाला साइड ऊपर जा रहा है नेगेटिव, ये नीचे जा रहा है पॉजिटिव, ये ऊपर जा रहा है नेगेटिव। कहाँ लग रहा है? बल्कहेड पे, लाल लाल बल्कहेड पे लग रहा है। ठीक है, ये एक और डायग्राम से समझा रहा हूँ, और एक और डायग्राम है यहाँ, फिर अब मैं बेंडिंग मोमेंट पे आऊंगा। ये शेयर आपको बताया था, शेयर क्या था, व्हाट इज शेयर, क्योंकि एग्जाम में आता है SHEAR, तो ये लिखना है। और अगर शेयर आए तो पॉजिटिव शेयर आपका फॉरवर्ड शेयर, हाफ शेयर, अपवर्ड बेंडिंग ऑफ द 4.5 of your upper deck in the longitudinal direction is known as shear। ठीक है,
एंड दिस इज अ फोर्स, SHEAR। तो ये एग्जाम के लिए दिखाने के लिए कि ये शेयर है और ये शेयर है, दोनों के प्रोनाउंसिएशन सेम है, बट इसमें एक लेटर चेंज हो जाता है। इस पे ध्यान देना। इसको आप जरा स्क्रीनशॉट ले लो, क्योंकि एग्जाम में ये आ जाता है तो आप ये सारा लिख देते हो, शेयर लिख देते हो। तो शेयर अगर आए तो ये लिखना है, SHEER आए तो वो शेयर लिखना है। जरा इसका स्क्रीनशॉट ले लो, ये जरूरी है, लिखो, स्क्रीनशॉट लो इसका। तो ये आपको सर, हाँ बोलो, मैसेज दे दूं बच्चों को सर? क्या दे, छुट्टी पे? नहीं, मैं कह रहा हूँ उनको ना, इनके बाद इनका सेल्फ स्टडी का पीरियड है, तो प्लीज ये लॉगिंग रहें, लॉग ऑफ ना करें। ठीक है भाई, वैसे भी अब चाय का टाइम होने वाला है, उसके बाद अगली बार कराएंगे। संजीव, तुम्हारी तबीयत ठीक है? हाँ, संजीव बैठ गए, बाकी सारे बैठ गए, तुम्हारी तबीयत ठीक है कि नहीं? मैं ठीक हूँ सर, ओके रिपोर्ट है। तुम टेस्ट करा क्या दिल्ली में? तुम टेस्ट करा क्या? सर कराना जरूरी है सर। क्यों, जुकाम हो गया था क्या? नहीं सर, थोड़ा लग रहा था थकान सी। ज्यादा टेंशन नहीं लो, बुखार, वो टेंशन से भी बुखार हो जाता है, घबराओ नहीं। जी सर। टेंशन लेते हो ना तो टेंशन से भी बुखार हो जाता है, जो टेंशन नहीं हो। ठीक है सर, स्टूडेंट प्लीज लॉगिंग रखना। बच्चा लोग, छुट्टी का टाइम, अभी आपका चाय का टाइम है, इसके बाद आपका वो बता रहे हैं संजीव जी कि आपकी इसकी बाद की क्लास सेल्फ स्टडी की है, तो लॉग इन करके रखना, लॉग ऑफ नहीं करना, ठीक है? ओके सर। ओके देन, अगली क्लास में बेंडिंग मूवमेंट समझाएंगे। ओके सर। ओके, थैंक यू सर। ओके जी। थैंक यू सर।